Welcome to the new episode of Sunday Islander Unstructured Conversation. And today we have amongst us Professor Vishwajit Pandya, Professor of Anthropology at Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, Gandhinagar. He is also the Honorary Director of Andaman Nicobar Tribal Research Institute. Professor Pandya is associated with Andaman and Nicobar Islands since the early 80s, when he started field research among the Ongi tribals in Little Andamans. Professor Pandya is on board the AJVS and various other committees on tribal issues of the islands. He has been instrumental in reorienting the Andaman Adim Janjati Vikas Samiti and preparing a vision statement for AJVS in the changed scenario. In 2013, Professor Pandya became the honorary director of ANTRI and had very ambitious plans for setting up of a living museum. Under ANTRI, new projects on education and clothing for Javas were initiated. It was widely appreciated. He has authored many books, research papers on various sociological and anthropological aspects of the tribes in the islands, as well as other communities across the world. His major books are In the Forest and Above the Forest, The New Histories of the Andaman Islands, co-authored by Professor Madhumita Mazumdar and Claire Anderson. Welcome, Professor Pandyaji, to this discussion. Thank you very much, Zubair Bhai, for this great opportunity to be with you in conversation. And what else but our favorite topic, the Andaman Islands? Yeah, thank you very much. So, shall we start with knowing in brief your association with the islands and how the journey has been till now? Uh, it has been quite a, I should say, up and down in some ways. I first came to Andaman in '83 from United States, where I was a PhD student at the University of Chicago. And that was a tremendous shock and excitement to the time we landed at Port Blair. That time the airport was all made out of wood and there was no conveyor belt. So there was a contractor who used to bring the thing in a small tractor or a hand trolley, and then we had to identify the baggage. From that day to today, I haven't seen the new airport, but I believe it's a magnificent structure. So things have changed. And of course, the reason why I moved from living overseas and moved to India was to be closer to Andaman because that's my field area, and I have a couple of other areas where I have done research work, but not as much as I have invested in Andaman and Nicobar Islands. So there are some years which are good and there are some years which are bad, and that has nothing to do with tsunami. It has more to do with the kind of changes which happens in the administrative structure, and things go up and down, and one keeps chugging along. I have grown old, experiencing all this over the last about 20 odd years, of things changing. Anyway, so it has been a very rewarding experience. I have learned a great deal, and I see Andaman as a great place to learn and explore. That's how I see it. Pandyaji, you have so much of experience working among the tribes. Can you throw light on our approach and policy on the tribes of the islands and how it has evolved since independence? Do we have community-specific policies, or is there a stalemate in formulating such policies? Uh, the brief answer to your long question, or rather complex question, is that things have improved. Um, some of those improvements are in good direction, and some of them are very stagnating. I must say that the original policy, since early days after independence, as instigated by the International Labour Organization, uh, in response to whom the Ministry of Home created all the tribal reserve territories, and AJVS was a consequence of that. That time, the concern was that if there are more and more agricultural communities settled on the land, somehow that the tribes will be pushed out. They will have a difficult time to survive. But I think the policy of protecting and providing to the tribal communities on this island has so far been successful. But just because the population has been sustained, it doesn't mean that the what could have been achieved has been achieved. In some ways, it has not been. And it's a very sad case that much more could have been done, and somehow other there's
not any capacity to pursue that and to have a goodwill to ask the people themselves. It has remained very static point of view that हम लोगों ने ऐसे ही देखा है, ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि ये सब ठीक है, कोई मर नहीं रहा, सब जिंदा है, लेकिन खुशी से जिंदा है कि किसी तरह से हैं, पड़े हैं हम, दैट इज नॉट राइट. आज अक्सर लोग, आइलैंड के लोग, जिनको काफी सिंपैथी है, मैं मतलब कंपेयर टू आइलैंडर्स, अगर नॉन आइलैंडर्स जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों के नजरिए में अभी भी आदिवासी आलसू है, काम नहीं करते. That's as good as the British people earlier said that they are savage, lethargic people. But the islanders don't see it that way. That I must commend, and it's really remarkable that there's much more appreciation among the people. But there's an apathy among the outsiders who have come to the island, either for work or for trade or for some sort of business or exploitation, whatever it may be the case. They have not tried to understand what is the perspective of the islanders and as well as the tribal. So the tribals are seeing कि वो जंगली है, वो नहीं सोचता है. मुझे याद है शुरू में AJVS एक्रोनिम है, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, और पोर्ट ब्लेयर में लोग कटाक्ष से या सरकास्टिकली बोलते थे, आओ आओ जेब भर जाओ समिति. वो अभी भी परसेप्शन यही है लोगों का, और वो बदलने के लिए काफी कोशिश करी गई है, कुछ हद तक किया भी गया है. एंड इट्स वेरी कमेंडेबल जॉब की जो पूरी एजेएस की टीम वर्क है, उनके बलबूते पे ही सब खड़ा है. अगर सरकार पैसा खर्चा करती है, डॉक्टर हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन अगर एजेएस ना होता तो ये परिस्थिति और भी खराब होती या कुछ भी नहीं. तो उस तरह से देखा जाए तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. ऐसा कोई सिंपल नहीं है कि हाँ प्रगति अच्छी हुई है. प्रगति हुई है, लेकिन और भी किया जा सकता है. और दर्द इसी बात का है कि और नहीं होता है. वो उसके लिए खुचपा नहीं है. जूइश भाषा में कहते हैं उसके लिए उत्साह नहीं है, उसके पीछे जोर नहीं है, उसको करने की एक उमंग नहीं है. तो ठीक है, as long as people are surviving and we are giving provisions, ठीक है. So we chug along, किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन वो प्रगति नहीं है. जी, एक्चुअली एक चीज जानना चाहता था कि आप जो पॉलिसी मैटर है, इसमें वेदर डू वी हैव कम्युनिटी स्पेसिफिक पॉलिसीज, जारवाओं के लिए अलग या शॉम्पेन्स के लिए अलग, ऐसा कुछ बनाए हैं? हाँ, हम लोगों ने जब से अंतरी बनाया है, अंतरी बनाने का प्लान 2004 में सबमिट किया गया था, और उसको बनने में बहुत टाइम लगा है. उसके पीछे बहुत बड़ी जद्दोजहद है. कुछ लोगों ने रोका है और कुछ लोगों ने उसका बहुत प्रोत्साहन भी किया है. मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. उनमें से कुछ लोग अभी भी द्वीप समूह में हैं और कुछ लोग रिटायर कर गए हैं. लेकिन ये हम लोगों ने ये पॉलिसी किया था कि अंग्रेजी में कहते हैं वन साइज फिट ऑल. एक ही साइज का पैर हर किसी पैर में नहीं चल सकता है. और अगर आप ध्यान से इसमें सोचें, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, अंडमान नहीं रहते. शॉम्पेन, उंगी, जारवा, सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज, ये सभी अलग अलग लेवल पे हैं. अगर उनको एक स्केल पे रखा जाए तो सब एक जैसे नहीं हैं. कुछ लोगों की, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, उंगी लोग डोंगी बनाते हैं, लेकिन ग्रेट अंडमानीज डोंगी बनाते थे, अब नहीं बनाते हैं, और उनके डोंगी के पीछे आउट ट्रिगर नहीं होता था. ग्रेट अंडमानीज लोग हालिस चलाते थे, सेंटिनलीज लोग डोंगी बनाते हैं लेकिन हालिस नहीं है, खाली एक सिंपल पोल से उसको धक्का मार के चलाते हैं. तो इस तरह के बहुत डिफरेंसेस हैं, और उसकी वजह से आज ग्रेट अंडमानीज जो हैं वो हिंदी में काफी फ्लुएंट हैं, लेकिन उंगी धीरे धीरे सीख गए हैं. लेकिन जारवा अब सीख चुका है, वो जारवा सीख गया है. मुझे एक याद है, एक इंसिडेंट पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड है जारवाओं के लिए. था पहले, जारवा अभी भी शायद है, वहाँ ड्यूटी पे रहता है एक. तो वहाँ पे एक समय ऐसा हुआ था कि ग्रेट अंडमानीज, उंगी और जारवा तीनों वहाँ पे मौजूद थे, और मैं उस समय लंच टाइम में पहुंचा था. तो उंगियों ने मुझे फटाफट कहा
कि आप भी थोड़ा चावल और उबला हुआ अंडा खाइए, ये हम लोग को अस्पताल देता है। जो बात सही है, अस्पताल का ये कानून किया गया था कि आप मसाला वसाला मत दीजिए। लेकिन ग्रेट अंडमानीज ने फटाक से कहा कि नहीं, अन्नपूर्णा से बिरयानी ही लाओ, हम उसके अलावा कुछ। जी तो तो वो उंगी उस समय सोचता है कि ग्रेट अंडमानीज बहुत प्रगति हो गए हैं, दे मच मोर एडवांस, यू नो, दे हैव ए फरमाइश, और उनकी फरमाइश के लिए आपको बिरयानी आता भी है। तो जी उंगी जी से क्या करना चाहिए, हमको भी कैसा खाना चाहिए। तो मैं कहा लेकिन जारवा तो नहीं खा रहा है। तो बोलते वो जारवा भी सीख जाएगा। सो दे हैव ए परसेप्शन ऑफ टाइम हैज चेंज, एंड हर किसी के लिए वो समय एक जैसा नहीं है, अलग अलग गया है, इसीलिए पॉलिसी अलग अलग ड्राफ्ट करी गई है। लेकिन वो दुख की बात यह है कि उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट करने वाले कई दफे हैं और कई दफे नहीं। अब वो यही पॉलिसी कम से कम 5 बार ये दोहराई गई है, 5 बार इसको लिखा गया है, 5 बार दिल्ली में जाके उसको फाइनलाइज किया गया, लेकिन अभी भी ये सवाल उठता है, अच्छा ये पॉलिसी नहीं है, ये तो पॉलिसी है, लिखा हुआ है, ऑलरेडी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है। तो ये वो अंग्रेजी में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन एंड अगेन। वो कहानी दोबारा चलती है, उसी में सारा समय निकल जाता है, सारा समय। तो ये ठीक नहीं है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अब 5 लोगों को या 5 कम्युनिटीज को चलाने के लिए एक आदमी इधर से वहां जाता है, वहां से इधर आता है, लेकिन भाषा को लेके, उसकी परिस्थिति को लेके कोई स्पेशलाइजेशन कंसर्न एफर्ट नहीं है। अजीब बात यह है कि पहले जमाने में यहाँ जो लोग ऑफिसर आते थे, यहाँ तक कि भारतीय लोग भी आते थे, वो लोग भाषा का इंटरेस्ट लेते थे, और बहुत हद तक अंडमानीज लिंग्विस्टिक्स का काम बहुत पहले से किया गया है थ्रू द सेंसस, फर्स्ट सेंसस 1901 वाला। लेकिन अब कोई ऑफिसर आता है, वो लोग ना लिखते हैं, ना कुछ पढ़ने की इच्छा रखते हैं। उनके मैं किसी व्यक्तिगत जात पे बात पे नहीं उठना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत धक्का लगा था कि एक सरकारी अफसर जो दिल्ली से आया था, उसने मुझे कहा कि निकोबार में रहने वाले जो शोम्पेन है, वो क्या होमोसेपियंस हैं? मतलब हम लोग अंग्रेजी भाषा में, टेक्निकल भाषा में, हर ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमोसेपियन। ये कहा जाए कि भी हम लोग सब बंदर के उसमें से इवॉल्व हुए हैं, स्टॉक में से। लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है कि शोम्पेन होमोसेपियन हो सकता है। अब इस किस्म का दृष्टिकोण अगर पढ़े लिखे लोगों का हो तो क्या किया जाए? जी। तो इसका तो इम्पैक्ट तो पॉलिसी पे बहुत पड़ते होंगे। हाँ, पॉलिसी अब ये अप डाउन पॉलिसी है ना, ऊपर से नीचे आती है पॉलिसी, नीचे से ऊपर कोई पॉलिसी नहीं जाती। इसीलिए हम लोगों ने अंतरी बनाया था, और उसके पीछे उस समय सेक्रेटरी जो थे देवनीति गणपति देवनीति, हाँ देवनीति दास, उन्होंने इस बात को समझा था, और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी समझाया गया था, और मोटा तक ये बात भी पहुंचाई गई थी कि पॉलिसी बनाना जो है वो दिल्ली से बैठ के फाइल में नहीं आ सकती, ग्राउंड से जानी चाहिए। नीचे वाले को क्या तकलीफ है, तभी आप दवा दे सकते हैं। डॉक्टर भी पुराने जमाने में, आजकल भी करते हैं, वो पूछते हैं कि खाना कल क्या खाया था, पेट ठीक है कि नहीं, सिर में कहाँ दर्द हो रहा है, और क्या तबीयत कैसी है, खुश रहते हो कि नहीं रहते हो, सोते हो कि नहीं सोते हो। आजकल क्या है, अच्छा तुम लोगों को राशन चाहिए, हम राशन दे देंगे, साहब वो राशन में हमको चीज ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो चेंज बदलते बदलते गए हैं। अब वो पहले जारवाओं को खाली केला दिया जाता था, अब जारवा खुद सिकलर से जाके तेल लेता है, आची का फिश मसाला लेता है। फिर अब लोग कहते हैं हाय हाय ये इनकी आदत खराब हो गई। उंगियों को पहले से राशन दिया, राशन में because the person who was looking after the territory of the Ungi Reserve Territory, he had a child, so he introduced milk powder because he had to raise his own family on it. Now the Ungis got used to the milk powder, so much so they got used to the idea of outsiders food. कि एक लड़की जन्म लिया था, उसका नाम रोटी दिया था, अभी भी शायद वो जिंदा है रोटी। तो वो ये चीजें हम लोग लाते हैं, एंड देन ऑन द रेट्रोस्पेक्ट सोचते कि ये तो बड़ी गलत हो गई बात। रोड बंद करने की बात की थी हमने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आज तक वो रोड को बंद करने की बात नहीं है। उसको कितनी बार हम लोगों ने आई वॉश किया है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रोसीजर में, कि हाँ हम कर रहे हैं, हम सी रूट का ऑल्टरनेटिव लगाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम लोगों ने ही जद्दोजहद करके कुछ हद तक हो सकता है कि बाकी आइलैंडर्स देख के मेरा गला काटेंगे कि वो जो कॉन्वॉय से उनको कम किया गया था, लेकिन जब जो मर्जी आता है उसको बदल देते हैं कानून। वो कम किया गया था, पुलिस भी खुश थी उससे और कुछ हद तक कंट्रोल में था, लेकिन वो फिर चेंज हो गया। पहले सब
के बहुत ज्यादा गार्ड है और पुलिस इन लोगों को करप्ट करती है। अब वही एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि डेली वेजेस वाले लेबर को, फॉरेस्ट लेबर को लाके यहाँ अपॉइंट करो ताकि वो लोग भी चौकीदारी करें। अब ये इस तरह से हम लोग लॉन्ग दृष्टिकोण में देखते नहीं। जो चीज वहां उंगीज में हो रही है वो जारवा में भी कर सकते हैं। It's so strange that a lot of people who see Andaman and Nicobar Islands say that why is it कि निकोबार इतना सुधर गया और अंडमान नहीं सुधरा, मतलब the tribal population. So there are different historical reasons and we cannot measure everybody in the same way. हर किसी की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन पांचों उंगली का महत्व उतना ही है क्योंकि वो हाथ की पांचों उंगलियां हैं। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अंतरी बनाया गया। और बिकॉज मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि दिमाग नाम के मसल को यूज करने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है और उसकी वजह से हम लोगों ने वन पॉलिसी रखी हुई है सब जगह। क्या हुआ वन पॉलिसी करके? ये तो ठीक नहीं है। इतना हम लोगों ने प्रोटेक्शन करके रखा था सेंटिनल, उसमें भी लाहौल मिलापुर में एक अमेरिकन गया वहां पे, एक तरह से वजूद लेके गया और वो बाइबल के ऊपर तीर खा के वापस आया। अब सारे जनता चिल्ला रही है, पुलिस वालों ने नए नए उसको थ्योरीज और नई नई फील्डें निकाले। लेकिन इतना बड़ा सेटेलाइट है हमारे देश में, इतने हम किसी भी 24 घंटे में जान सकते हैं कि कौन से जंगल में, भारत के कौन से जंगल में किस बाघ ने बच्चा दिया है। लेकिन हम ये आज तक नहीं जानते हैं कि पूरे सेंटिनल आइलैंड में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है और हर सीजन में कहाँ बदलती है। ये करना बहुत सिंपल काम है, लेकिन क्या है, नहीं, सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, there is this, there is that, 100 different strategic dimensions are told. But why can't तो we? पांड्या जी, आप जो बोल रहे हैं तो जो जो पॉलिसी है हैंड्स ऑफ आइज ऑन करके जो बोलते हैं सेंटिनलीज के लिए जो पॉलिसी बना है, ये आप क्या कह रहे हैं कि ये पॉलिसी चेंज होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि हैंड्स ऑफ एंड आइज ऑन शब्द मैंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एडमिनिस्ट्रेशन में एंड थैंकफुली इट वाज एक्सेप्टेड। लेकिन उसके बाद उसमें एक क्लॉज भी है कि हम लोगों को आइज ऑन रखने का मतलब है वी शुड सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड कि क्या है, ये क्यों ऐसा होता है कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी टाइम पे ही ये लोग दिखते हैं, बाकी टाइम नहीं दिखते। तो बाकी टाइम कहाँ है ये लोग? आइलैंड तो सेंटिनल आइलैंड तो एक छोटा गोल सर्कुलर आइलैंड है, ऐसा नहीं है कि इट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम किलोमीटर से किलोमीटर है। लेकिन हम लोग सोचेंगे, आज तक कोई ये नहीं सोचता है कि ये लोग लोहा कहाँ से लाते हैं। पहले ये था कि वहाँ शिप टूटी थी या कॉलोनियल टाइम्स में कोई जहाज टूट गया तो उसमें से लोहा आता है। आप अगर देखें हिस्टोरिकली पोर्ट ब्लेयर में 2-3 संग्रहालय हैं और हर संग्रहालय में फोटो है। सेंटिनल के तीर सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा लंबाई में, सबसे भारी है तीर। इतना लोहा कहाँ से आता है? अभी भी आ रहा है, कहाँ से आता हो? ये तो है नहीं कि वो लोग उसी चीज को रिसाइकल कर रहे हों। तो सेंटिनल की आग कहाँ से कैसे बनता है? अभी भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है कि ग्रेट एंडोमिनीज वगैरह ये लोग या शॉम्पेन जैसे वो लकड़ी के साथ लकड़ी उसको घुमा घुमा के आग जलाते। लेकिन सिंपल तरीका है कि ये कहाँ से आए, ये प्रश्न नहीं उठते हैं। ये प्रश्न जरूरी है सोचने के। आज जारवाओं के लिए हमने इतना वेलफेयर पॉलिसी बनाया है, लेकिन ये सोच के देखिए कि जारवा को हर दूसरे तीसरे दिन वही व्यक्ति जो आपको एटीआर के सड़क पे नए नए पैंट और शर्ट में दिखता है, वो कहाँ से आता है? क्या क्या हम लोग सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पे लीक है या कहाँ पे लूप होल्स हैं जहाँ से ये चीज हम कहते हैं प्रोटेक्टेड है, बट आर वी रियली प्रोटेक्टेड एंड हु इज डिफाइनिंग प्रोटेक्शन एंड आर वी हैव वी आस्क्ड कि तुम्हें ये प्रोटेक्शन मंजूर है या नहीं? उसको क्या चाहिए वो तो हम कभी पूछते ही नहीं। वेलफेयर हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग कभी किसी से पूछते नहीं। हम लोग पेरेंट्स होने के नाते से बच्चों को कह रहे हैं तुम क्या खाओगे, बच्चा तो कहेगा मैं टॉफी खाऊंगा, लेकिन हम एज ए पेरेंट डिसाइड करते हैं देखो टॉफी भी खा सकते हो, फल भी खाओ, एक बैलेंस डाइट रखो, समझने की कोशिश करो। बच्चा बोल सकता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग ट्राइबल जो है ना वो देखता है, ना सोचता है, ना सुनता है, वो जंगली है, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। गलत बात है। लेकिन देखिए हम लोगों में से कितने लोग आदिवासी भाषा जानते हैं और आदिवासी कितना ज्यादा हम लोगों की भाषा जानते हैं। वी कैन कम एंड इंटरैक्ट एंड आस्क द पॉलिटिशियन विजिटिंग द टेरिटरी हमको ये मांगता है, लेकिन हम उसको जाके बोल सकते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या तकलीफ है, क्या मांगता है? कमांड लैंग्वेज, इट इज स्टिल कंटिन्यू। जी, तो इस पे अंतरी जो काम किए थे जारवास के बीच में, जी,
जो 2014 से शायद 17-18 जी तक आप जो जी एक्टिवली जो काम किए थे, जी उसमें आपका एक प्रोजेक्ट था उनके लिए, जो एजुकेशन सिस्टम जो जी शुरू किए थे, अंकता, अंकता, और जी दूसरा जो है क्लोथिंग शुरू किए थे, जी कंगापू। 2 जी प्रोजेक्ट्स थे आपके। ये जी। कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, कितना सस्टेन कर पाए हैं इसको? सबसे पहले हम लोगों ने असल में अंतरी के थ्रू प्रोजेक्ट किया था कि पूरा जारवा का कैलेंडर बनाया था कि किस मौसम में वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भाषा में कहा है, इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहीं से भी जारवा निकलेगा, गांव वाले चिल्लाते हैं जारवा है, हमारे खेत में से ये ले गया वो ले गया, इसका कंपनसेशन दो। तो कोई आदमी उठ के वैसे ही नहीं चलता है। हम लोगों को बाजार जाना है क्योंकि घर में चाय की पत्ती नहीं है, तो हम बाजार जाके चाय की पत्ती लेते हैं। तो यू हैव टू ग्रांट दैट सोचने की क्षमता। तो हम लोगों ने पूरे 12 महीने में जारवा का सीजन का डिवीजन क्या है, उसको क्या कहाँ आता है, खाना बदोश है ये लोग, what do they want to gather from where, और वो उन लोगों का भी हमारे जैसा ही सिस्टम है कि इस मौसम में सब लड़कियां अपने पीहर जाएंगी, इस मौसम में सब जमाई जो है वो ससुराल जाएंगे और वहां शहर जाएंगे। तो उसके बीच में अगर कोई पुलिस वाला है, नहीं तुम रोड पे मत रहो, तो उसकी उसकी जो कस्टम है, उसकी कस्टमरी बिलीफ है या उसका जो राइट चला रहा है, उसको आप तोड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अंतरी के थ्रू पहले एजेस के वर्कर्स को इस बारे में सेंसिटाइज किया, उनको ट्रेन किया। उसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस इन रिलेशन आया। उसमें से सवाल निकला कपड़े का कि हर कोई को पहले से ये था कि बस में एटीआर जाएंगे तो नंगे जारवा देखेंगे, इट वाज ए टूरिस्ट एग्जॉटिक कंसेप्ट। इनफैक्ट उस पर बहुत सारा बवाल हुआ था। वो हिंदी में बोलते हैं कृष्ण की गोपी क्या, ग्वालियर की छोचरी हिलावे कन्हैया को अरहर की दाल पे, वो नाचने के लिए नचाते थे, बिस्किट के पैकेट देके, उसको लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉडी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कपड़े की शर्म? हम लोगों की हम लोग बोलते हैं कपड़ा पहन के शर्म आनी चाहिए, कपड़ा नहीं पहना तो, लेकिन आप दूसरे की घर में क्यों जाते हैं जहाँ कपड़ा नहीं है देखने के लिए? तो वो कपड़े का सेंस क्या है? कपड़ा इज ए कांगापू, कांगापू इज ए अनस्टिच्ड क्लॉथ, स्टिच्ड क्लॉथ इज कॉल्ड कोयला पोई, which is also the term among the Ongis. कपड़े को सिल दिया तो कोयला पोई। तो धोती जो है, साड़ी जो है, वो कांगापो है, लेकिन शर्ट जो है, जीन्स जो है, वो कांगापो है, कोयला पोई। तो हम लोग ये समझना चाहते थे कि कपड़ा उनको क्यों नहीं पसंद है, क्या उसको क्या प्रेफरेंसेस है कपड़े के। वो पता लगा के उन लोगों से बात करके, उन लोगों का इनपुट देखे, हम लोगों ने डिजाइन किया कि ये जो मैक्सी देते हैं वो उन लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो हमेशा पानी में या जंगल में जाने के लिए वो उठाना पड़ता था। आप हम लोगों ने देखा है हर भारतीय औरत वो किस तरह से उसको ऊपर करती है साड़ी को, और थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है जिस किस्म की जमीन अंडमान में है, बारिश जो है। तो उन लोगों को अलग अलग ऑल्टरनेटिव दिए गए। उसमें से जो उन्होंने पसंद किया था किस रंग का होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन उन लोगों के डॉक्यूमेंटेड ऑल ऑन द फिल्म, तो ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने उनके गले से उठवाया है या उनके मुंह से निकलवाया। लेकिन उसके बाद खाली ये ना हो कि कपड़ा दे दिया जाए, उसको उन लोगों को भी सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए उनको तैयार करना चाहिए। तो वो लोग जो टोले बनाते हैं, जो टोकरी बनाते हैं, उस टोकरी को हम लोगों ने बनवाया एज ए कोऑपरेटिव। आप लोग हर औरत टोकरी बनाएगी और एक टोकरी के बदले में उसके परिवार के 2 लोगों के लिए उसको कपड़ा मिलेगा, बच्चे के लिए और उसके खुद के लिए, या औरतों के लिए या पुरुष के लिए। तो इट वाज ए सेल्फ, क्या कहा जाए, एक तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग था, क्योंकि सरकार हर महीने जारवाओं के पीछे, उस जमाने में, आज से 3 साल पहले की बात है, हर जारवा के पीछे करीब साल में 600 या 700 रुपए का स्टिच मैक्सी खरीद करती थी। हम लोगों ने ये किया कि उसको वो लोग दें और उसके बदले में कपड़ा ले जाएं। वो जो टोकरी का जो पैसा आएगा वो उसी फंड में वापस जाएगा। तो दूसरा कपड़ा चाहिए या टॉर्च नहीं चाहिए या अच्छे किस्म का दा चाहिए, तो उनको प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद दिस सिस्टम वाज, हम लोगों ने कोशिश करके एयरपोर्ट पे या वो सागरिका में रखने की कोशिश करी। लोगों का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, क्या डॉक्टर साहब आपने ये हाथ की बनी हुई खराब टोकरी कौन खरीदेगा 700 रुपए में? तो 700 रुपए का सवाल नहीं है। आप लोग मेनलैंड से जाते हैं, मेनलैंड में शॉपिंग करते हैं, वहाँ सफेद पत्थर की बने हुए ताजमहल की मूर्ति का आप खरीदते हैं,
वो हाथ की बनी हुई चीज है, मधुबनी पेंटिंग खरीदते हैं, तो ये हैंडमेड चीज है, उसको रिकग्नाइज कीजिए। और उस पैसे को आप खाली चीज के लिए नहीं दे रहे हैं, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉज, एंड इट इज आल्सो फाइटिंग विद डिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। एक तरह से खादी वाला पॉलिसी था ये, कि स्वराज एंड स्वदेश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि अंडमान से अलग करिए, लेकिन खुद के पैर के ऊपर खड़े होने के लिए, उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेंस करने के लिए सिखाना जरूरी है। उनको आप कल प्रोटेक्शन करके उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनको तैयार तो कीजिए, उनको उनकी क्षमता तो कीजिए, उनको क्षमता तो दीजिए। इसीलिए हम लोगों ने अंक कथा शुरू की कि इंस्टेड ऑफ उंगलियों के बीच में सरकार की बनी हुई किताब, क से पाइनएप्पल, प से पंप। अब कौन बरखुरदार, ठीक है पाइनएप्पल तो अब आजकल मिलता है अंडमान में, या क्या उसको बोलते हैं, अनानास या बनानास ऐसा, तो वो है, लेकिन पंप तो किसी को मालूम नहीं। और वो भी एक उंगली को आप दे रहे हैं, वो जो रिजर्व टेरिटरी से बाहर नहीं निकलता है, 26 जनवरी को उसको नचाने के लिए ले जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जारवाओं का सीजन के आधार पे क्लास डिवाइड करेंगे, और करिकुलम जो हो वो उनके सीजन के, ये नहीं कि क्लास 1 से क्लास 2 जा रहे हैं, लेकिन हर साल क्लास 1 से क्लास 2 में भी वही चीज पढ़ाएंगे, ताकि वो रीइंफोर्स करे। एजुकेशन में उसको कहते हैं सिक्लिकल लर्निंग, टू रीइंफोर्स द लर्न्ड पैटर्न। तो और उसमें खाली टीचर ना आए, उनके जो एल्डर्स हैं वो उन लोगों की ट्रेडिशनल चीजें भी पढ़ाएं। तो हम लोगों ने 3-4 बुक्स तैयार करी उन लोगों के लिए, और वो था बाइकल्चरल एंड बाइलिंगुअल, मतलब हिंदुस्तानी भी हो और जारवाओं की अंक कथा भी हो, ताकि वो अपनी भाषा ना भूले और हम लोगों के साथ वो हम लोगों की भाषा भी सीख सके और उससे भी पढ़ लेके आगे। वो करने के लिए भी हम लोगों ने सब इन लोगों की बैठक करी जारवाओं की, खास करके फूलतला के हॉटस्पॉट पे। ये हॉटस्पॉट भी हम लोगों ने आंतरिक के थ्रू किया था, कि सब जगह आप गाँव वो चड्डा में जाके या जंगल के अंदर में जाके उसको मेडिकल का डॉक्टर ले गया, ये नहीं होना चाहिए। एक उनकी भी प्रिवेसी है, उनका भी एक सेंस ऑफ हमारा घर है, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो और हम मिल सके, एक समानता हो। तो हॉटस्पॉट बनाए गए। अब वो हॉटस्पॉट में हम लोगों ने बैठ के, ये भी हम लोगों ने फिल्म करके रखा है, डॉक्यूमेंट करके रखा है। ऐसा नहीं है कि ये सब हवा में बातें। दीज आर व्हाट इज कॉल्ड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी खाली माप करना या स्टेटिस्टिक्स करना नहीं है, ये मैं किसी एक उद्देश्य से खास कह रहा हूँ। लेकिन एनीवे वी डॉक्यूमेंटेड, और उन लोगों ने कदम तल्ला में बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा था। तो एल्डर्स ने कहा कि हम भी इनको पढ़ाएंगे, हमको भी इन्हें पढ़ाना चाहिए, हम सिखाएंगे स्कूल में, और उनको बताएंगे तीर धनुष कैसे बनाते हैं। आजकल बच्चा मानता नहीं है हमारी बात। तो ये देखते हुए जनरेशन को साथ लड़ा, कम्युनिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने पॉलिसी जो बनाई है वो आदिवासी इंडिविजुअल के लिए बनाई है, तुमको राशन करना चाहिए। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आइडियल स्कूल्स में हर आदिवासी ऐसे कम्युनिटी रहता है। कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी यहाँ पे भी नॉन ट्राइबल केस में भी हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं, हम लोग कम्युनिटी श्रमदान की बात करते हैं, हम लोग पंचायत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल कर दिया, तोड़ दिया है, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों ने कहा कि हमें कम्युनिटी बेस्ड हम लोग सिखाएंगे, आप लोग भी कुछ सिखाइए और हम लोग भी। सो एक स्तर पे दोनों को लाया गया, किताब तैयार करी गई, बच्चों को एक्सरसाइज करा गया, बच्चे हमको भी यूनिफॉर्म दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर आके स्कूल में बैठा भी, भारतीय सरकार के कुछ और बाद में लोगों का आया तो उनको भी स्कूल दिखाया गया। उसके बाद क्या हुआ, ठन ठन गोपाल, वही उसके हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस ऑल वेंट डाउन। अब उसको लोगों ने अंग कथा को अंग व्यथा बना दिया, बट कोई डेडिकेशन नहीं, उसमें जाके पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। So, ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको परस्यू करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं गया। और ये बहुत दुख की बात है कि ये करना जरूरी था और ये करने नहीं दिया जाता। कुछ लोग कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं इसमें खास खुल्ला कहूंगा कि एजेविएस के इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स जो हैं, उन लोगों ने बहुत साथ दिया है। लेकिन जो लोग फील्ड पे नहीं जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि फील्ड में ये सब करने की क्या जरूरत है, इनको कपड़ा चाहिए दे दो, इनको लोहा चाहिए लोहा दे दो। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग ग्रेट अंडमानीज को भी प्रोटेक्टेड रखते हैं, दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज पीवीटीजी। तो उनको फिर के ये जो केस रिपोर्ट हुए थे वो कैसे हुआ, वो अखबार में क्या हम लोगों की इग्नोरेंस से क्या हमने परपेचुएट किया। दे लिव इन आइसोलेटेड आइलैंड, the great Andamanese, most of them are living in Port Blair,
That is one Yeah, of the most of reasons them. catch COVID. Correct me if I am wrong. आप मुझसे ज्यादा जानते हैं पोर्टब्लेयर में, लेकिन ये क्या है उसके पीछे मजबूर क्या है, खत का मजबूर क्या है कि आपने इन लोगों को जहां रखना था वहां रखने के लिए सुविधा नहीं दी। आपने दी है, घर भर बना दिया, लेकिन वहां मीन्स टू एंड नहीं दिए, मीन्स टू सर्वाइव एंड मीन्स टू नहीं दिए। वो लोग मेरा लाइवलीहुड। रिकॉर्ड है, इन फिल्म रिकॉर्ड है कि ग्रेट अंडमानीज बच्चे तो विवेकानंद स्कूल में है, वो लोगों का एस्पिरेशन क्या है, हम स्पोर्ट्समैन बनेंगे। वो बेचारी लीचू रिसेंटली मर गई, उन्होंने एक दफा मुझे जिक्र किया था कि हमारे बच्चे क्रिकेट स्टार बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिकेट स्टार सारी पूरा हिंदुस्तान बहुत पैसा कमाते, दे हैव एस्पिरेशंस। तो आप उन्हें कह नहीं सकते कि नहीं एस्पिरेशंस नहीं है, वो लोग भी सोचते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि एक उंगी या एक जारवा बाप और माँ अपने बच्चों के क्या भविष्य सोचते हैं। आपको याद होगा अंतरी ने पहली बार इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, थिंकिंग फ्यूचर्स। हाँ, एंड इट वाज कॉल्ड थिंकिंग फ्यूचर्स। उसके पीछे मुद्दा था कि भविष्य के बारे में सोचिए, लेकिन क्या हुआ, अच्छे अच्छे ध्यानी ज्ञानी लोग, महान विद्वान लोग आके, मैं जब यहाँ आया था तो ये होता था, वो होता था, ढैं ढैं ढैं, लेकिन हर जगह में कहीं पे भी आदिवासी की आवाज नहीं है, और इसी उद्देश्य से अंतरी बनाया गया था। और मैं इसका स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ कि यू मस्ट हैव द वॉइस फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से आवाज जो आ रही है उसको पहले सीखिए और समझिए। ऊपर से नीचे दर्द देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कमांड देते हैं, लेकिन मुझे बताओ, मुझे सुनाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो वो जरूरी है, क्योंकि आप भी अगर मुझे कहेंगे तो मैं ध्यान से सुनूंगा कि हाँ जुबेर भाई मेरी बात सुनना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलाऊंगा आपने मुझे यहाँ बुलाया। वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जो जी, वो कॉन्फ्रेंस के बाद में कोई उसका कुछ आउटकम आपको नजर आया है जो तो ग्राउंड में आप यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मुलेट कर सकते हैं? नहीं, वो देखिए, मैं ऑनररी डायरेक्टर, मैं अगर करना भी चाहता हूँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी भी मैं ऑनररी डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं हाथी के दांत खाने के एक और दिखाने के एक और। कोई रिसोर्स नहीं है, कोई करने का वही नहीं है, इसलिए उस सेमिनार का जो आउटकम था, इट वाज सपोज्ड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड टू फाइंड आउट अमंग पीवीपी ग्रुप व्हाट दे थिंक ऑफ देयर फ्यूचर। हम लोग उनका फ्यूचर सोचते हैं, वो तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए वो लोग क्या बोलते हैं। इसलिए एजेवीएस और अंतरिक्ष स्टाफ और पूरे अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आए थे। एएसआई को बुलाया गया था, अब तो वो एएसआई बोलते हैं, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे। शर्मा ने बहुत इंटरेस्टिंग ये बात बताई कि हम लोगों को जो बर्तन मिलता है वो भी हम रखेंगे, और हमारा जो खुद का पुराने जमाने का बर्तन है वो भी हम रखना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा बाप कैसे रहता है। तो दे हैव ए विजन ऑफ फ्यूचर। क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ एक म्यूजियम है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई दम नहीं है, छोड़ दीजिए, ये ड्रॉप कर दीजिए, तो ड्रॉप हो गया वो। हर एक टेक्स्ट बुक जो थी, 3 टेक्स्ट बुक बनाई थी हम लोगों ने, उसमें से 2 पे हम लोग बनाई, एंड इट इज यूज्ड इन द कथा। हर बच्चा और पेरेंट अब वो वीडियो पे देखना चाहते हैं, तो एनजीओएस के वर्कर्स given them the DVD and they show it, they see, and the children learn that how they have to hunt for honey in the jungle. जंगल में कहाँ पता चलेगा कि कहाँ मार छत्ता लगा। तो these are tacit knowledge। लोग भी सोचते हैं, इन लोगों का फिलोसफी है, लोग भी पोएट्री करते हैं, इससे बड़ा लिंग्विस्टिक्स है, तो ये भी सोचते हैं कि कैसे गाते हैं, क्यों, क्या गाते हैं। आप लोगों ने कहीं सुना होगा, कई आइलैंडरों ने देखा, में या जीप में बिठा के हॉस्पिटल से जंगल ले जाते हैं, लोग सब गाना गाते हैं, डे 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 डे, रिपीट करते हैं, लेकिन क्यों चलते वक्त गाना गाते हैं, क्या किसको सुना रहे हैं? ये सब जानना भाषा में जरूरी है, बिकॉज उसके पीछे एक गहरा नजरिया है, में रहने का एक तरीका है, और वो तरीका और वो फिलसफा जो है, हिंदी में शायद फिलोसफी को फिलसफा कहते हैं। जी जी। वो वी हैव टू ग्रांट कि ये लोग भी सोचते हैं, ये हम लोग भूल जाते हैं, और इसीलिए अंतरी बनाना, एजुकेशन करना, कल्चर को समझना ये जरूरी है। 2-3 मॉडल रख दिए या निकोबार के लोग के गाना बजाए, इससे कोई कल्चर प्रिजर्व नहीं होने वाला है। आपके पास कल्चर की डेफिनेशन ही नहीं है। इसका आज जो स्टेटस है, इज इट एक्टिव नाउ? नहीं, इट्स ए सिंबॉलिक थिंग, इट्स एग्जिस्टिंग।
वो अजगर के मुंह में चला गया, बाहर भी नहीं निकल सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, क्या उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। जो रिसर्च ड्रिवन होना चाहिए करके सब आप लोग जो हाँ, सोचते हैं, देखो रिसर्च ड्रिवन होना चाहिए, वो होता ही नहीं है, कोई उसको इनिशिएटिव ही नहीं लेता। रिसर्च का मतलब क्या है कि अच्छा हम लोग 5 किलो देते थे, उसकी जगह 4 किलो दे दो, जरूरत नहीं है। इतना बड़ा राशन का सप्लाई करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इतने बड़े मेडिसिन के डिपार्टमेंट जाके काम करते हैं, ब्लड सैंपल, ये सैंपल अपना कितना सब होता है, डीएनए टेस्टिंग करो, ये करो, माइटोकॉन्ड्रिया से लेके पूरा हेयर का सैंपल स्टडी करके। लेकिन how do the Javas or Ungis तो छोड़ दीजिए, they have gone further ahead now. ट्रेडिशनल सीजन का अवेलेबिलिटी है, उसको देखते हुए तो एक सीजन में खाली प्रोटीन है, एक सीजन में खाली कार्बोहाइड्रेट है। अब वो उसको वो कैसे बैलेंस करता है? हाउ डज दैट हैपन कल्चरली? हाउ इज इट हैपनिंग? एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल डायमेंशन इज आल्सो देयर, फिजियोलॉजिक इज आल्सो देयर। लेकिन these are the issues which need a new kind of questioning and a new kind of understanding. And वो चीज एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है अंडमान में। प्रॉब्लम जो है वो ग्राउंड पे है, और उसका सोल्यूशन भी ग्राउंड पे निकलता है, आप बाहर से नहीं कर सकते। स्वराज के लिए स्वदेश जरूरी है। 2019 में नीति आयोग का एक ये था कि फिजिबिलिटी ऑफ टूरिज्म इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसके टीम बनाए थे, को आप हेड कर रहे थे। हेड नहीं, मैं मेंबर, मैं खाली शॉम्पेन के लिए हेड कर रहा था, लेकिन उस टीम का मैं मेंबर था। या इन ग्रेट निकोबार आइलैंड में शॉम्पेन्स के लिए है ना? हाँ, वो लिटिल अंडमान में भी किया है उन लोगों ने, मतलब वो हिंदी में कहते हैं श्री नारियल, वहां पे भी तोड़ने की कोशिश करी है, शॉम्पेन में भी करी। तो इस पे आप जब शॉम्पेन्स को डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सवाल कैसा फॉर्मुलेट किया और कैसा बताया ये चीज? ये हम लोगों को पहले तो एक बात है कि उन लोगों ने बहुत गोल गोल बात कही। कमेटी का हम लोगों ने पूछा कि आप यहाँ, आपका क्या विचार है डेवलपमेंट का? तो वो आपको सुन के शायद हंसी आएगी या पुरानी बात है, ये एयरपोर्ट बनाएंगे, गोल्फ कोर्स लगाएंगे, टूरिस्ट रिसोर्ट बनाएंगे। टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने के लिए कौन लगाएगा? तो वो हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल एग्जाम्पल है सक्सेस का, हैवलॉक। तो देश दूसरा है कि ट्रांसशिपमेंट करेंगे, तो ट्रांसशिपमेंट के लिए जंगल काटना पड़ेगा, कहीं से हिस्सा निकालना पड़ेगा, वो उम्मीद के जंगल में भी काटना पड़ेगा। ये कितना, इतनी जमीन पड़ी हुई है, कोई जरूरत नहीं है लोगों के लिए। दे हैव नो क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज अ फीजिबल डेवलपमेंट। इसलिए हम लोगों ने निकोबार में जब शॉम्पेन एरिया में काम करना शुरू किया था, तो उस समय ये मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन दिया था कि अगर मैं लिख के दूंगा तो ये लोग बात मानेंगे नहीं, ये लोग कहेंगे कि आप लोग एक्टिविस्ट हैं, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट, आप लोग सब हमारे प्रगति के रास्ते में बाधा उठाते हैं। यू नो, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लोग ये करेंगे ही करेंगे, आप लोग जितनी भी करनी है बात कर लीजिए। तो हो सकता है शायद ना भी हो। आई एम ऑलवेज होपफुल एंड आल्सो वेरी पेसिमिस्ट। हो सकता है कि दे विल डिस्कस एंड ओपन द थिंग, बिकॉज एट द मोमेंट नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। और बहुत बहुत अलग अलग किस्म के दबाव हैं। वो जहाँ पे ट्रांसशिपमेंट एरिया बनाना चाहते हैं ग्रेट निकोबार में, दैट्स द ओनली टर्टल्स कम एंड ले एग्स, एंड इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड। एंड उसपे लोगों ने कहा कि अरे वो क्या है, कछुओं को यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और दे देगा, यू नो, सेक्टर 6 में नहीं तो सेक्टर 5 में चला जाएगा। तो कछुए तो आर हार्ड वायर्ड, जेनेटिकली वो जहाँ जाते हैं वहीं रहते हैं, और वो जहाँ से उठते हैं वहां से पानी की तरफ ही दौड़ते हैं। अंडा फूटता है जमीन पे, लेकिन जाते हैं पानी की तरफ। अब ये दीज आर नॉलेजेस और नॉलेज सिस्टम्स इम्प्लिसिट इन द एनवायरमेंट। तो एक अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी ये अलग अलग नहीं रह सकती। ये सबको संगठन में देखना, इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। आप लोग, हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, बट वन हैज टू हैव इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ए आइलैंड। ये दुनिया के हर आइलैंड में ये प्रॉब्लम है, एंड दे हैव डेल्ट विद इट। हमने एक दफे कोशिश करी थी कि जेएनआरएम में इंट्रोड्यूस किया जाए इंटरडिसिप्लिनरी ट्राइबल आइलैंड स्टडीज। That is one way in which Andaman can connect to the whole of Southeast Asia. हम लोग, we have all started looking east. चाइना को छोड़ दीजिए, लेकिन मलेशिया, बर्मा इस तरफ देखते हैं। हम लोगों के इंटरनेशनल रिलेशंस, हम लोगों की जियोलॉजिकल कंडीशंस वहां पे भी वैसे ही आदिवासी जैसे यहाँ है। There are a lot of parallel situations. The kind of medical problems they have, we also have that same in the forest. So we should bring these out in the JNRM college and the curriculum. स्कूल के करिकुलम में भी कोई आदिवासी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जंगल के लिए कोई सिखाता ही नहीं है। इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स आते हैं, बिकॉज वो यूजीसी ने कह रखा है कि सबको पता होना चाहिए कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, वो सिखा देते हैं। लेकिन रोज के रोज अब थोड़ा चेंज हुआ है, मैं इसको बात को भी मानता हूँ। अंडमान में बर्ड्स को लेके
बहुत कम्युनिटी लेवल पे काम हो रहा है। पोर्ट ब्लेयर के बाहर भी वो ग्रे टील आके बैठना शुरू हुआ था, उसको लेके गांव वालों ने मिलके वहां पे रिजर्व टेरिटरी करके कंट्रोल किया है। लोगों में जागरूकता है। आज का जो इकोलॉजिकल सिचुएशंस हुई हैं, फिजी जैसे आइलैंड हैं, पैसिफिक आइलैंड में हैं, वहां पे पानी अगर 4 फीट और बढ़ गया तो कई आइलैंड्स डूबने शुरू होंगे। जी बम्बई के लिए भी ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन 20 years if you don't control it, lot of Mumbai will be under the water. Now, this futuristic study and uncertainty, ठीक है, tribal is a very important issue, but tribal is a part of that. You know, ये कितनी अजीब बात है कि कोई ओंगी मरा नहीं ड्यू टू सुनामी, भगवान की दुआ है, लेकिन कितने कितने लोग निकोबार में बेचारे पानी में बह गए, क्यों? उसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन। लोग बोलते हैं कि नहीं जी, वो उन लोगों ने देखा, वो जानवर चले गए, ये हो गए, इसलिए वो गए। नहीं, ये बात नहीं है। ओंगियों ने दिया है ना, पब्लिश दिस दैट दे हैड ओनली वन आइडिया कि सडनली जमीन से पानी कम दिख रहा है, तो वो जितना उसको पीछे धकेलोगे वो उतना ही इक्वल रेजिस्टेंस से वापस आएगा। मतलब इफ द वाटर हैज गॉन डाउन इट विल रिसीड बैक टू द लेवल। तो जो चीज धुली है वो चीज वापस आएगी। इसलिए हम लोग पहले से ही वहां से उठ गए थे, और वो सीजन में वो लोग वहां रहते ही नहीं कोस्टल किनारे में। सो देयर इज विजडम इन हाउ यू ऑब्जर्व एंड हाउ यू अंडरस्टैंड फॉर फ्यूचर। देखिए, अंडमान में जितने भी पुराने घर हैं, कोई भी समुद्र के किनारे नहीं है। सी फ्रंट प्रॉपर्टीज है वेरी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है। लोग पहले ही जानते थे कि ऊंची जगह में घर बना तो नीचे पहाड़ भी दिखेगा, पानी भी दिखेगा। लेकिन अब हम लोगों ने देखिए वो पोर्ट में फैलाते फैलाते कहाँ एकदम किनारे में ले आए हैं समुद्र के। एक भगवान ना बचाए, एक और सुनामी बहुत नुकसान होगा। और घर जिस किस्म के बन रहे हैं, तो देखिए जब ग्लास इज यूज्ड एवरीथिंग विल शैटर। कितना हीट वो होता है, रिफ्लेक्ट होता है। वुडवेयर के अंदर तो गर्म लगता है आजकल, पहले कभी नहीं ऐसा होता था। सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ फोकसेस which is not only tribe but it is island culture, and islanders are the people who will have to stand up for their rights and say कि हमें इस किस्म का ज्ञान, इस किस्म की जरूरत है, मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे उस हिसाब से दवा दीजिए। आप मल्टीविटामिन की खाली गोली मत खिलाइए। गोली खिला खिला के लोगों को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। और ये आइलैंड में और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्यूट सिचुएशन, बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है और उसको बचाना जरूरी है। वो उसी इकोलॉजी में जारवा भी है, ओंगी भी है, सेंटिनलीज भी है, शॉम्पेन भी है। ये जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी अभी है, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो परस्यू कर रहे हैं, लेकिन आप जब वो जो नीति आयोग के लिए जो रिपोर्ट बनाए थे, उस पे भी सेटलर्स का जो सेंस क्या था वहाँ पे, वो क्या चाहते थे? इफ आई हैड टू क्विकली असेस द थिंग, हर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे याद है पर्टिकुलरली मिस्टर जादवेद हु रिप्रेजेंटेड द पोर्ट ब्लेयर चेंबर ऑफ कॉमर्स, he said that we don't have the infrastructure for saying that we want development to happen like this. And उसमें से किसी ने फिर ये पॉइंट आउट किया कि आप वहाँ ट्रांसशिपमेंट एरिया बनाना चाहते हैं ग्रेट निकोबार में, जहाँ 1000 किस्म के इंजीनियर्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की शिप्स आएंगी और पार्किंग होगी और लोडिंग एंड अनलोडिंग होगा। वो अगर शाम को कहीं कॉफी पीने चाहता है तो कहाँ जाएगा? आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इंशाल्लाह भगवान ने वहाँ फोन लाइन पहुंचा दी है। पता नहीं फोन चलता है या नहीं चलता है, लेकिन कहने के लिए तो है फोन लाइन, लेकिन वहां से फोन नहीं किया जा सकता। मैं तो अभी भी पोर्ट ब्लेयर किसी को अगर फोन करना हो तो मुझे इस सर्किट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, आपको पिया पकड़े रहिए फोन पे, तो आप पकड़े रहिए, हर किस्म के लोगों का इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद बोलिए, तब शायद आपका नंबर लग गया तो लग गया। अभी अब तो ये बहुत अच्छा हुआ है ना, अभी कम्युनिकेशन हो गया, तो आप हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं, दूसरे तो कुछ प्रगति हुई है, ये बात नहीं है, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा हाउ इट हैज टू बी डन। ये मतलब हल्ला बोल और हमला कर, बुलडोजर लाओ और काट दो, ये नहीं हो सकता। हम लोगों ने जारवा टेरिटरी को अंदर फटाफट एटीआ बना दिया, उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये बहुत गलत है, बेचारे लोगों का नुकसान हुआ, तो कोर्ट में केस कर देंगे, एक्टिविस्ट ये वो बंद कर। तो हमने कहा हम ऑल्टरनेटिव रूट बना देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी भी जारवा सिचुएशन इज नॉट इन कंट्रोल, देयर आर प्रॉब्लम्स देयर।
वो रोड क्यों नहीं बन हुई? रोड किसने ये सजेस्ट किया? ये एटीआर को बनाने में पीछे कितने बड़ा हिस्ट्री है। ये एक ब्रिटिश लोगों ने स्टडी करके रोड बनाया था। आज अगर वो रोड वैसे ही बनानी जाए तो अभी उसका रोड का एक्सपेंशन हुआ, वो पोर्ट ब्लेयर से बाहर के रास्ते जाने में कितना 2 साल तक मिट्टी खट रही थी और धूल धूल होती थी। गाड़ी अगर सफेद गाड़ी जाए तो बाहर निकलती थी तो मिट्टी के रंग की गाड़ी निकलती थी, ऐसा लगता है जैसे ईंट की बनी हुई गाड़ी। तो we have to think in long distance. Returns cannot be the only measure of welfare. You cannot say कि इकोनॉमिक रिटर्न के लिए मैं आज सब कुछ काट दूंगा, ये गलत बात है, ये नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो ये पूरे हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह में ये हो रहा है और उसका इम्पैक्ट होगा। कितने लोगों ने टैक्सी खरीदी थी कि टूरिज्म बढ़ रहा है, कितने लोगों का पैसा डूब गया उसमें। मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ क्योंकि वो लोग मुझे गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उन लोगों का तो वो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। सडनली कहा कि हम इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे एंड इंडस्ट्री डालेंगे, लेकिन क्यों, कहाँ हुई है, कहाँ वो इंडस्ट्री डालने से या गाड़ी चलाने से क्या प्रोग्रेस होगी? नहीं। व्हाई डोंट वी डू एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? वो चौलधारी के पास वहाँ जो गांव है चौलधारी का, उन लोगों ने अच्छा किया है, उन्होंने एग्रीकल्चरल टूरिज्म किया है, मैंने जो सुना है, पता नहीं अभी है कि नहीं, कि लौंग की खेती या इलायची जो की खेती है वो आके आप देखिए एंड यू एंजॉय दैट थिंग। वो पहले पोर्ट ब्लेयर के बाहर भी किसी सरकारी एग्रीकल्चरल फार्म था, जी, शायद इंस्पायर होके उन्होंने, तो दैट्स अ गुड थिंग, सीपी घाट के पास। तो वो इस तरह के जो कंसर्न्स हैं, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं, वो अच्छे एफर्ट्स हैं एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट। बट यू कैनॉट ब्रिंग ए मैप विच इज सुटेबल फॉर मेनलैंड पीपल एंड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। मतलब आज से 4 साल पहले अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग सिंगापुर गए कि सिंगापुर में इतनी डेवलपमेंट है, हांगकांग में क्या टूरिज्म हो रहा है, हम लोग भी यहाँ करेंगे। और वो दैट वाज द मॉडल विच द नीति आयोग आल्सो ट्राइड टू पुश कि इफ हांगकांग बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते, सिंगापुर हो सकता है तो व्हाई कांट पोर्ट ब्लेयर बिकम सिंगापुर? नहीं हो सकता है। जो चीज वहां है, उनकी हिस्ट्री, उनका इकोनॉमी और उनके पीछे ऐतिहासिक कारण बहुत अलग अलग है। तो वो हम नहीं कर सकते। उसको करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसको करने के लिए एक वृत्ति तैयार करनी है, एक नजरिया तैयार करना पड़ेगा। तो अभी जो इनका जो नजरिया है, ये तो बहुत डेट्रीमेंटल है एनवायरमेंट और पीवीटीजीस के लिए सिर्फ नहीं, पूरा आइलैंड्स के लिए और आइलैंडर्स के लिए। इट्स पुशिंग अस टू ए कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जी, यार सोचिए हैवलॉक में क्या हुआ, आज खाली पानी की इतनी बोतलें पड़ी हुई हैं, उसका क्या कोई उपचार नहीं है। पता नहीं, शायद मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन वो हैवलॉक क्या, वो दूसरे जो जमीन है वहां पे वाटर टेबल इतना कम हो गया कि फार्मर्स सब्जी नहीं उगा पा रहे। मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है वहां नील से आइलैंड। हाँ, नील आइलैंड पूरे पोर्ट ब्लेयर को सब्जी खिलाता था। मुझे याद है छोटपन में जब हम गए थे 83 में, तो नील आइलैंड से फूल गोभी आती थी। तो मैं तो अचंभे में पड़ गया था कि कहाँ पोर्ट ब्लेयर में इतनी गर्मी होती है, कहाँ, लेकिन वहां नील में होती थी। वो मायाबंदर से ऊपर तरफ भी संतरे होते थे, वो सब चला गया है। मुझे लगता है हम लोगों को सबको मिलके एक टीवी शो करना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपकी आपकी परिभाषा क्या है, हाउ डू यू डिफाइन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर हुम एंड एट व्हाट कॉस्ट। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये तो कुछ जन की हिताय का सुखाय। मैं एक डॉक्यूमेंट देख रहा था जो आप ही ने तैयार किए हैं शायद, ये जो एजेविस के लिए एक विजन स्टेटमेंट बनाए थे जी, उसमें आप जो थिंकिंग फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट आप बताए, उसमें बहुत चीज है जो आप उसमें सजेस्ट कर रहे हैं, जैसा ओंगी पार्क हो या फिर ग्रेट अंडमानीज, वहाँ पे भी जो है ना टूरिज्म का कुछ प्रमोशन के लिए कुछ कर सकते नहीं, हैं विद देयर इन्वॉल्वमेंट। मैंने उंगी पार्क नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि उंगी सेंस ऑफ कंजर्वेशन जो है, वो कैसे पेड़ को या पानी को साफ रखते हैं, वो जी, जो समुद्र की तरफ जाने वाली नाली है उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस पेड़ के बारे में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और डुगोंग क्यों नहीं मिलता है डुगोंग क्रीक में, उसके बारे में उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। वो शहर से जो लोग आते हैं, मेनलैंड से जो लोग आते हैं, उनको उंगी उसके बारे में लिखते थे, उंगी उनके एनवायरमेंटल एजुकेशन का है। तो इकोलॉजिकल टूरिज्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि घास फूस की झोपड़ी बनाई जाए,
और उसमें लोग बैठ के हाँ जी हमने इको एनवायरमेंटल टूरिज्म किया। लेकिन ज्ञान, टूरिज्म बेस्ड ऑन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल लोग क्यों घूमने जाते हैं? कोलंबस क्यों हमें स्पेन की जगह छोड़ के गया था? क्योंकि वो जानना चाहता था कि आगे क्या है, और उसके जान की तलब की वजह से, खोज की वजह से अमेरिका पता चला। तो इसी तरह से अगर हम एनवायरमेंटल टूरिज्म को सोचते हैं, तो जो लोग एनवायरमेंट को संभाल के रखे हैं उन लोगों को चांस दीजिए बताने के लिए, और लेट देम टीच। तो हमने ये प्रपोज किया था कि आप ओंगी का जो एनवायरमेंटल पार्क है, इकोलॉजिकल निश एरिया जो है, उसमें किस किस्म के पौधे से वो लोग चाय बनाते हैं, किस किस्म के पौधे से वो किसी किस्म की ट्रीटमेंट्स का नुस्खा निकालते हैं, उसकी कंपोडियम लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि वो ओंगी को खाली जंगली ना समझे, बट ओंगी एज ए स्टोरेज ऑफ नॉलेज, ओंगी एज ए बॉडी ऑफ थिंकिंग पीपल, ये कल्टीवेट हो। तो उससे हम लोग भी शायद कुछ अपने एनवायरमेंट में बदल ला सकेंगे। उनके कई किस्म के प्लांट्स हैं जो एडिबल प्लांट्स हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कहीं सोचते नहीं है। हम लोगों ने इतना बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेशन बना रखा है, तो इट कैन बी डन, those things could be cultivated। किसी टूरिस्ट को अगर आप एक कप चाय भी पिलाएं उनके जंगली ₹6 देगा, लेकिन ही विल रिमेम्बर दिस, हमने हम लोग गांव में तुलसी का काढ़ा पीते थे, लेकिन ओंगियों के साथ हमने टुकुंजू मुड़ी पी, एंड that was a great experience। So they will cultivate their own plants and take care of the native plants around them। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। इट वाज नॉट सेइंग कि यहाँ आके आप एनवायरनमेंट को एक्सपर्ट कीजिए, इट वाज मोर टूरिज्म ऑफ लर्निंग। दैट इज व्हाट द थिंग वाज। लेकिन उसको लोगों ने क्या बना दिया, आप स्ट्रेट आइलैंड में लोगों को टूरिज्म करवा रहे हैं। नहीं, स्ट्रेट आइलैंड में टूरिज्म नहीं करवा रहे, उंगी के बीच में टूरिज्म नहीं करवा रहे। ये मेरे ऊपर बहुत गलत कई दफे आरोप लगाए गए हैं कि मैं नक्सलवादी बना रहा हूँ इनको एजुकेशन करके। लोगों ने एक चीज यहाँ जानवरों के बीच में शुरू करी थी, वो बंद करवा दी गई, वाज कॉल्ड अंग सेना, कि पोचर्स को पुलिस वाले नहीं पकड़ सकते थे। ये बहुत बड़ा केस होता था। हमेशा मुझे यहाँ फोन आते थे, एजेविस वर्कर्स रात को फोन करते थे, साहब वहाँ पे लंगड़ा आया है। देयर वाज ए बंगाली पोचर, ही वाज नोन एज लंगड़ा, मशहूर केस है। वो आया है, वो जानवरों के साथ वहीं पे सो गया है और उसको पकड़ना है। तो कैसे करेंगे, क्या करना है, किसको जाए? लेकिन द लिमिटेशन वाज दैट पुलिस नहीं जा सकती थी, पुलिस कैन नॉट मूव इन दैट टेरेन, बट जारवा कैन, जारवा नोज ऑफ इट, एंड जारवा ही रिपोर्ट करता था कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वी सेड इन लोगों को अंक था जो स्कूल प्रोग्राम है, उसमें से इन लोगों को सिलेक्ट करके इनको ट्रेन किया जाए कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग कीजिए। कोई गलत बात नहीं थी, किरण बेदी भी करती थी, वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठी है। So that's a very standard practice, community policing. Let the community take responsibility. That was connoted as what? कि पांड्या इन लोगों को नक्सलवादी बना रहा है। Oh my God. नहीं था इंटेंशन। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि आम आदमी बहुत निरक्षर है, अनएजुकेटेड है, लेकिन आई थिंक द एजुकेटेड पीपल हु कम एंड सिट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन समटाइम्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम ऑफ देम एक्सेप्शनली आर इलिटरेट एंड दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड ए पर्टिकुलर थिंग। हमें प्रोवाइड करना है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बस उतना ही है हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि ऐसा है कि उन जारवा या फिर जो भी ट्राइब्स है, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंड, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ये डू दे सेंस एनी काइंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम दैट? दे सी इट थ्रेट टू देयर ओन स्टेटस को। हम लोग अगर बोलते हैं तो बोलते हैं देखिए हमने भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, हम भी पढ़े लिखे हैं। आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन जैसे लोग बड़े बदमाश थे, उन लोगों ने मध्य प्रदेश में 4-4 बहुएं रखी थी। सो फॉर देम इट इज रिड्यूस टू दैट, यू नो। आप जारवाओं के जाके अंदर जाके जंगल में क्या करते हैं, यू नो। आपको भी उतना ही शौक है जितना टूरिस्ट वहां जाके नंगे लोगों को देखना चाहता है। तो ये गलत आरोप है। ये पॉइंट इज दैट you have to grant them that they are human beings. That is the first thing. You cannot treat them still as a PVTG. ये गलत तरीका है। सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि वो लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है इस जमीन पे एज ए सिटीजन जितना मेरा है। आज कोई जारवा ये नहीं कह सकता कि मैं पोर्ट ब्लेयर आना चाहता हूँ देखने के लिए, या मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया किसी ओंगी को नहीं बुला सकता कि मेरे घर आओ चाय पीने के लिए। मैं प्लेन की टिकट करूंगा, तुम आओ मेरे घर। हुआ था, दिस इज यूज्ड टू बी, माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी इन दिल्ली एंड ओंगी लोग 26 जनवरी के लिए, दिस इज इन 1982
83 की बात है, 26 जनवरी के लिए दिल्ली गए थे। तो मैंने अमेरिका से मेरे पेरेंट्स को कहा कि उस ग्रुप में 2 ओंगी आ रहे हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको आप मेरा ओंगी नाम दीजिएगा और उनको कहिएगा कि आप मेरे उमूरी हैं, मतलब मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी गए गाड़ी लेके, कि जब लड़के ने कहा है, उसकी उसकी उसके खास दोस्त लोग हैं, ये जमाई हैं, तो वो मेरी अम्मा को लेके गए और उनके लिए उबला हुआ मछली लेके गए। फिर उनको कहा कि उनको मछली खाने का शौक होता है, तो आप मछली उबाल के ले जाइएगा मम्मा को। बड़े खुश हुए वो लोग। तो कहा कि हम आपके घर खाना खाने आ सकते हैं? नहीं हो सकता है, कानून नहीं है। मैंने पोर्ट ब्लेयर में उंगलियों को लाया था, जब मैं उंगलियों को जारवा के साथ कांटेक्ट करने के लिए ले गया था। 1989 की बात है। तो पोर्ट ब्लेयर में उन लोगों ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं बे आइलैंड में मेरा कमरा है। तो उस जमाने में मैं बे आइलैंड रहता था। एक जमाने में मेरा भी मतलब बोलबाला था, या मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन अलग थी। तो उन लोगों ने कहा हम भी देखेंगे। तो मैंने बे आइलैंड के मैनेजर को कहा कि देखिए ये लोग बे आइलैंड देखना चाहते हैं। तो उसने कहा जरूर, हम उनके लिए, आप बताइए क्या करना चाहिए क्या। मैंने कहा कि कुछ ये नहीं है कि तमाशा नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, हम लोग उस हिसाब से डाइनिंग एरिया जो है बाहर का बरंडे में, आपको ख्याल होगा, वो अलग रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जितने वेटर थे वो लोग मुझे जानते थे, कई साल से मैं आता जाता रहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग खिलाएंगे। मैं कहा नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं। लेकिन उंगली का ऑब्जर्वेशन क्या था, बे आइलैंड के स्विमिंग पूल में लोग पानी में क्यों पड़े रहते हैं? तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, पानी में अगर जाना है तो चलते पानी में जाना चाहिए, ये खड़ा पानी है, वो गड्ढा खोद के रखा उसमें बैठे हुए भैंस के जैसे। तो they have also a way of seeing what we are. You know, it is called cultural relativism. And we have to grant that वो लोग भी सोचते हैं। हम लोग आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में दुख की बात है कि they don't think of them as human beings. They don't think of them। वो पोइट्री बनाता है, वो सोचता है, वो लैंग्वेज है। हम लोग लैंग्वेज का काम करते हैं। तुम इसको क्या बोलते हो? हम इसको चटाई बोलते हैं। तुम इसको क्या बोलते हो? हम इसको ताले बोलते हैं। तो उसके बियॉन्ड बात ही नहीं जाती। ये क्या, ये हम लोगों की नॉलेज ऑफ द अंडमान आइलैंड, particularly in situation to tribal culture, has still remained limited. You know, it has not increased. कोई भी आप महान पंडित को भी पकड़ लीजिए, वो हम लोगों के कॉन्फ्रेंस में ये लोग आए, अंडमान निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 365 आइलैंड्स, 25 of them are uninhabited and they have 5 PVTs। बस वहां से शुरू होती है, वही की वही जाके खत्म होती है, आगे कोई बात नहीं निकलती। और लोग इसीलिए पॉपुलर नहीं हुए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्कल इन हिंदुस्तान, क्योंकि मैं लिखता हूँ कि जारवा लाइफ के बारे में क्या सोचता है, वो जारवा क्यों नहीं सेटलमेंट में जाके रहना चाहता है। सो यू हैव टू कन्वर्स, यू हैव टू आस्क देम एंड दे टेल यू वेरी इंटरेस्टिंगली, यू नो, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बैड थिंग। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं यही बोल रहा था, क्योंकि आप आज जो सोच रहे हैं शायद 10 साल के बाद में हो सकता है कि दैट विल बिकम अ पॉलिसी और रियलिटी बन जाएंगे। क्योंकि सी दैट इज द प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स और इवन जो पॉलिसी मेकर्स, कि दे कांट हैव ए विजन, एक इमेजिनेशन नहीं है उनको, या फिर वो सोचते नहीं है जैसा सोचना चाहिए। यही जो एक डिफरेंस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई रिमेम्बर मीटिंग यू इन 2010 एंड एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सीजनल मूवमेंट जो जरवास का है, उसको स्टडी करने की बहुत जरूरत है। एंड व्हेन यू स्टार्टेड इट आफ्टर 6-7 years, इट गेव ऐसा रिजल्ट्स दिए हैं जिसके वजह से जो है ना, यू कुड फॉर्मुलेट सो मेनी न्यू थिंग्स। ओके, हाउ मीन्स उनका जो वी कैन रिलेट विद देम थ्रू देयर टाइम एंड सब उसी की वजह से हुआ है। तो मे बी द थिंग्स दैट यू सजेस्टिंग नाउ वो ऐसा लगेंगे कि बहुत आउटरेजियस है। मे बी इन फ्यूचर व्हेन दिस थिंग्स कम क्योंकि बिकम्स देखिए रियलिटी। लेकिन वही दुनिया एक में चीज है कि ना, टुडे वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जो आप सोच रहे हैं वो वहां तक आज कब तक पहुंचेंगे वो अभी भी दुनिया में ग्रुप्स विच आर लाइक आवर ओन पीवीटी चीज, भाई लोग, उनके जैसे ग्रुप्स और भी हैं दुनिया में। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सी एंड स्टडी in Australia with certain aboriginal population.
Even in Malaysia, I frequently study there. I have collaborations with there. In South America, मेरे कुछ पुराने जो उस्ताद इन लोगों से जिनसे लोगों से मैंने सीखा है, टेरी टर्नर और सोल्टेक्स वगैरह, इन लोगों का इंडिजिनस कम्युनिटीज में काम है और वो एजुकेशन के थ्रू ही बढ़ा है. आज ब्राजील में कायापो इंडियंस के बीच में जाकर बहुत लोग फिल्म बनाते थे, नेशनल जियोग्राफिक, फलाना, डिस्कवरी. उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, आप नहीं फिल्म बनाएंगे, आप यहाँ अप्लाई कीजिए, हम यहाँ फिल्म बनाना चाहते हैं, हम डिसाइड करेंगे आप किस चीज पे फिल्म बनाएंगे और हमें मान्य होगी तभी आप वो फिल्म बनाएंगे. Now this awareness will come here also. आज पुलिस ने जाके पूछा कि वो फ्रेंच कैनेडियन लोगों ने आके जारवा में फिल्म बनाई थी, ऑर्गेनिक जारवा. किसी को सरकार में पता ही नहीं चला था कि लोग 2 बार आके गए. उसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैं गया था सुनवाई करने के लिए कि किसने कौन जारवा क्या उसके बारे में सफाई देता. लेकिन ये लोग कैसे गए और हम लोगों को पता ही नहीं चला. और उन लोगों के साथ इन लोगों ने कैसे बात की, और उसके बीच में ऑफकोर्स माया बंदर के कुछ और लोग भी मौजूद थे, we were involved in it. So then the Javas became very conscious of it. आज अब वो लोग किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे. वो आज से 10 साल पहले इस तरह कि तुम हमारा फोटो लोगे तो हम कैमरा निकल छीन लेंगे तुम्हारा. एंड दैट हैपेंड. 2-3 बार उन लोगों ने फोटो कैमरा छीन लिया. एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को बोला तो पुलिस बोलते हैं आपने क्यों कैमरा निकाला था. तो कहाँ आपने लिखा है. तब से वो ATR में सब जगह बोर्ड लिखा रहा है कि आप वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, फोटोग्राफी नहीं करेंगे. वो कहाँ से आया? That was the awareness with the people, and that awareness in the Java was installed by the AJVs. Good for it. कई चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों ने किया है और मैं उनके लिए सलाम करता हूँ AJVs के वर्कर्स के लिए. उन लोगों ने जारवाओं के बीच में there used to be something called उपचटा. अभी भी वो वर्ड यूज होता है कि कोई आदमी बुढ़ा हो या बीमार हो जाए, इनकेपेसिटेटेड हो जाए, तो उसको पेड़ के नीचे रख देते और उसको कोई एक व्यक्ति जाके हर 2 हफ्ते के 1 हफ्ते के बाद या 4-5 दिन के बाद जाके पानी या खाना जो कुछ वो दे आता. दैट पर्सन वाज अलाउड टू डाई ऑन हिज ओन. तो वो कहते हैं ना वृद्धाश्रम, ओल्ड पेंस रिटायरमेंट होम जैसा. जब वो इट्स नॉट गुड इन आवर पर्सपेक्टिव. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट्स आवर मोरालिटी. ये कहिए कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की मोरालिटी. हिंदुस्तान में हिंदू लोग कहते थे कि आप वानप्रस्थ आश्रम में चले जाइए. तो इन लोगों ने वो प्रथा बंद करवाई. अच्छा है, बंद करवाई. इट्स इनह्यूमन प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड स्टैंड. लेकिन उसी टोकन से उंगलियों के बीच में देयर इज अ प्लेस पर ओबरनाले, जहाँ पे हर बुढ़ा आदमी जिसकी पत्नी ना हो या हर यंग आदमी जिसकी शादी ना हुई, वो सब बैचलर्स एक ही जगह में रहते थे. एंड दे यूज्ड टू रन इट एज ए क्या कहते हैं फ्रेटर्निटी. एंड दे वुड ट्रेन एंड एजुकेट ईच अदर. तो उसमें गाना, रस भरे चीजें और हंसी मजाक सभी होता था. वो गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना उंगी फैमिलीज हैं सबको गिनो. ये उस समय 26 थी, तो 26 क्वार्टर बना दो. अब वो ओबरनाले टूट गया ट्रेडिशन. अब क्या हुआ है, बुढ़े हो गए उंगली, मेडिकल फैसिलिटीज हैज मेड इट पॉसिबल टू लिव लॉन्गर. अब वो उंगलियों के बीच में एक व्हील चेयर आदमी है, एक आदमी है जो व्हील चेयर से निकल ही नहीं सकता, तो उसके लिए हर जगह स्लोप बनाए जा रहे हैं. तो इफ यू स्टार्ट डिसमेंटलिंग द कल्चरल यूनिट्स, इट्स ए मेजर डिजास्टर. एंड दिस वन हैज टू नोटिस, वन हैज टू स्टडी. क्यों हम लोग कटहल का पेड़ नहीं लगाते हैं उंगली सेटलमेंट में? कटहल का पेड़ का सिग्निफिकेंस है उन लोगों के लिए. बुलू डांगे, जंगली कटहल, नॉट द पका हुआ जो कटहल हम लोग खाते हैं, लेकिन जंगली कटहल जो है उसका पेड़ उन लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है. वो लोग बोलते हैं कि कटहल कट गया है. सब कटहल अगर लगाएंगे तो सुअर को खाना ज्यादा मिलेगा, तो सुअर की पॉपुलेशन बढ़ेगी. सो दे हैव अ सेंस ऑफ हाउ द इनपुट एंड आउटपुट इन द एनवायरनमेंट वर्क्स. ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है, अरे छोड़िए पंड्या साहब, कौन नर्सरी में जाके जंगली कटहल का सैपलिंग तैयार करवाएगा. क्यों नहीं हो सकता है? किया जा सकता है. वो उंगलियों को ही किया जा सकता है. उंगलियों को ही कहा जा सकता है कि तुम लोगों को एक दाम मुफ्त दिया जाएगा. तुम 25 आपके प्रोग्राम में आप मनीष चंडी को लाए थे, मुझे याद है. मनीष चंडी मेरा अच्छा दोस्त भी है और कई तरह से मेरा कोलैबोरेटर भी रहा है. मनीष चंडी ने निकोबार में वो कैसिडिना पाम की एक वैरायटी को कल्टीवेट करने की कोशिश करी. तो वो वहाँ के लोग ही उसका सैपलिंग कलेक्ट करते हैं. वो उनको उसको सहूलियत सुविधा देता है कि वो उसको प्लांट करें along the coastline to check erosion. It's a good thing. लोग खुद भी कर सकते हैं, खुद भी निर्भर हो सकते हैं. लेकिन हम लोगों को
ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा ग्रेट इंडोनेशिया में हुआ। मुर्गी का पोल्ट्री फार्म दीजिए आप, मुर्गी का खाना बनाया, वो रखने के लिए पिंजरा बनाया, फिर इन लोगों ने कहा कि साहब उसको दाना खिलाने के लिए किसी आदमी को भाड़े पे रखिए, तो एक बेचारे को वहां ड्यूटी पे रखा गया, वो मुर्गी को दाना खिलाता है। वो उसको कुछ बीमार हुआ, कुछ हुआ, वो घर गया, वापस ही नहीं आया, तो वो मुर्गियां भी सड़ गई, मर गई। क्या हुआ, मुर्गी खा गए हम, कोई जरूरत ही नहीं। तो सेल्फ सफिशिएंसी कहाँ गई, कौन कौन अपने पैर पे खड़ा हुआ? वो अप्रोप्रिएटनेस सोचनी चाहिए। सडनली इन लोगों ने बात बीच में उठाई है कि जारवा और ओंगे के बीच में शहद करने का वो किया जाए, प्लांट लगाया जाए। लेकिन इंशाल्लाह ओंगी और जारवा हजारों साल से शहद इकट्ठा करके खुद बनाता है। आपको अगर उसे मार्केट करना है तो उसमें आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। वहां हो सकता है बॉक्स बिठाइए टू ग्रो नेचुरल हनी, फ्लेवर्ड हनी। जारवा लोग बोलते हैं कि इस पेड़ का जो हनी है वो इस किस्म का फ्लेवर अलग है, एंड दे डिस्टिंग्विश इट। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर केसर के फूल पे ही मक्खी पैदा हो और उसी का खाए तो उसके हनी में फर्क पड़ता है। तो जारवाज नो ऑफ दैट, किस पेड़ से हनी का उखाड़ेंगे तो हनी में वो फ्लेवर होगा। तो दिस कैन बी एनहांस्ड, ए पर्सन हु डील्स विद एपीकल्चर कैन कम एंड डू दिस। लेकिन प्रपोजल क्या आता है, हनी कल्टीवेशन वालों ने प्रपोजल दिया है कि हम हर जारवा एरिया में 25-25 हजार रुपए के हनी का प्लांटेशन सिखाएंगे। अरे खुदा, ये लोग हनी इनका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट है। साल में 3 महीने हनी के लिए बेचारे तो उत्साहित रहते हैं कि कब हनी आएगा। जैसे हम लोग आम के लिए हैं, मेरी फेवरेट आम दशहरी है, यूपी की खास। तो एक हम लोग देखते हैं, दिन गिनते हैं कि कब से दशहरी आनी शुरू होगी। बारिश आई तो दशहरी खत्म हो जाती है। Okay, बहुत it's nice talking to you, Pandya ji. For a lot of issues, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। especially. आपके क्या कहा जाए, आपकी खुद आपकी बेनोवलेंस की वजह से मैं अपनी बात दूसरों को पहुंचा सका। ये आपने It's मेरी इंटेलिजेंस की, इसलिए पांड्या जी, थैंक्स टू यू। आप जैसे लोग अगर लोगों से कन्वर्स करेंगे अंडमान में और लोगों को ये बताएंगे, तो जितने जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो सेटलर्स में ट्राइबल्स के बीच में होते हैं, या फिर सेटलर्स एनवायरमेंटलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं उनके बीच में होते हैं, बहुत इश्यूज जो है इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए ये जो एक डिस्कशन रहा है, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। we'll hope that we'll have more such discussions with you और अलग अलग इश्यूज पे, क्योंकि यू हैव गॉट सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट द आइलैंड्स, द पीपल हियर, द ट्राइब्स एंड ऑल। तो जरूर फ्यूचर में भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच पुण्य जी। थैंक यू वेरी मच, द प्लेजर वाज एंटायरली माइन।